Hello, dear friends. Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the aldehyde ketone and the carboxylic acid. Up to our previous lecture, we have learned about the making of the carboxylic acid and the chemical and the physical properties of the carboxylic acid. Actually, chemical properties of the carboxylic acid में दोस्तों तीन अलग तरह की रिएक्शन हो सकते हैं. उसमें से फर्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम पढ़ रहे थे. और वही रिएक्शन में दोस्तों थोड़ा सॉरी सेकंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम पढ़ रहे थे. दैट इज बिकॉज ऑफ बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन. सो ये बॉन्ड क्लीवेज, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज से क्या क्या रिएक्शन हो सकती है वो पढ़ना था. ऑलरेडी दोस्तों एनसीईआरटी से दो रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद द PCl5, PCl3 and the SOCl2. Remember the similar reactions are we have already learned in the alcohol. अल्कोहल में दोस्तों यही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज था. सो फ्रॉम द PCl5 हम क्या कर पाते थे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड वी विल गेट हेलो alkane. So here dual bond oxygen is also there, so acid chloride होगा. From the PCl3 we can get again chloroalkane. So यहाँ पे acyl chloride. SOCl2 is also अल्कोहल टू क्लोरोअल्केन थी. यहाँ पे बस उतना कॉमन है, इतना ही डिफरेंस होगा दैट OH की जगह पे वहाँ पे यहाँ पे सी ड्यूल बॉन्ड O है, वहाँ पे दो हाइड्रोजन या फिर दो अदर कार्बन चेन हुआ करती थी. यहाँ पे सी ड्यूल बॉन्ड O है. सो दैट वी कैन गेट halogen over here. So this is acid halide, making of acid halide. The hydroxyl group of the carboxylic acid behave like that alcohols is easily replaced by the chlorine atom on treatment with the phosphorus pentachloride or phosphorus trichloride or thionyl chloride SOCl2. Thionyl chloride SOCl2 is preferred because the other two products are gaseous and the escape the reaction mixture, making the purification of the product easier. सिमिलर दोस्तों यही सेंटेंस हमने पढ़ा था कहाँ पे, इन दी अल्कोहल. सो टू मेक अ क्लोरोअल्केन टू अल्कोहल SOCl2, आई मीन टू से डार्जन मेथड वाज द बेस्ट बिकॉज यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट थी दैट वाज HCl गैस एंड दी सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो इजीली एस्केप हो जाएगी. सो दैट वी विल गेट अ प्योर हेलो अल्केन, हियर प्योर एसिड क्लोराइड. और वी कैन से समहाउ अगर प्योर नहीं है देन प्यूरिफिकेशन इज इजी बिकॉज ये वोलेटाइल है, इजीली गैस में कन्वर्ट हो जाएगी. सो let's see the first reaction with the PCl5. Suppose this is the carboxylic acid and PCl5. So this first oxygen is C dual bond O, carbonyl carbon, then hydroxyl with the carbon. So ये bond break होगा and finally we will get Cl in place of hydroxyl. So acidic chloride, phosphorus oxychloride and the HCl both are common products, same as alcohol. Second with the PCl3, 3 moles of PCl3 can make 3 moles of chloroalkane. ये हुआ था. सिमिलर यहाँ पे 3 moles of Cl will replace 3 moles of hydroxyl or 3 molecules of the hydroxyl group. Okay, phosphorus and the 3 hydroxyl group will make H3PO3. Remember H3PO3 phosphorus acid, and our product was haloalkane, here acid chloride. You can see 3 mole of RCOCl plus H3PO3. यार एक्चुअली कुछ इस तरह से था 3 moles of C dual bond OOH. सो प्रोडक्ट में फिर से 3 moles of C dual bond OCl. ओके, लास्ट वन विद द thionyl chloride. सो यहाँ पे फिर से दोस्तों सिमिलर, दिस इज R C dual bond OOH. सो HCl क्या करेगा, OH को रिप्लेस करेगा. सो दैट वी विल गेट R C dual bond OCl प्लस यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला दैट हाइड्रोजन एंड वन क्लोरीन फ्रॉम दी SOCl2 दैट विल मेक HCl गैस. Sulfur oxygen and another oxygen will make sulfur dioxide gas. So at the end our byproduct are gaseous products so that they can escape easily, और as per as लॉ सेल्टियर प्रिंसिपल हमको यहाँ पे easily ज़्यादा quantity में product मिलेगी. Clear? So the final product is SOCl, RCOCl, SO2 and the HCl. These both are in the gas form. Here यहाँ पे दोस्तों जो आपको जगह दिख रही है that place आपको कुछ examples बनाना है. For example here suppose I'm writing CH3 CH2 C dual bond OH, then what will be the product? Similar यहाँ पे कोई एसिड सपोज करके आपको एग्जाम्पल बनाना है और वो है साइड में लिख भी देना है. So one of the easiest reaction with the PCl5 or PCl3 or SOCl2. That is the reaction number third because of carbon oxygen cleavage.
ओके, ये कार्बन ऑक्सीजन क्लीवेज में नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज रिएक्शन विद द अमोनिया। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टू मेक अ थैलीमाइड। क्या है आगे देखते हैं दोस्तों। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द अमोनिया, carboxylic acid with the ammonia to give ammonium salt, which on further heating at high temperature give amides. For example, here we can see this is the carboxylic acid. अगर दोस्तों आप चाहो तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा, this is CH3, this C dual bond O double bond OH आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो. So when we react with the ammonia, the lone pair of the nitrogen is going to donate its electron to the hydrogen. और ये हाइड्रोजन एक्चुअली प्रोटॉन फॉर्म में होगा बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन. So at the end, this NH3NH plus become NH4 plus positive ion, and the negative carboxylate ion is there CH3 C dual bond O O minus. So this is one type of salt. You can see this is your positive radical, this is your negative radical. That is ammonium acetate. After the formation of this salt, if we heat this salt properly at high temperature, then the possibility to reduce H2O, two hydrogen and one oxygen as H2O. So remaining product is amide. You can see CH3 C dual bond O and H2. Simple. Second reaction here is the benzoic acid. So benzoic acid with the ammonia. Again H plus को यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, so NH4 plus बनेगा, and the benzoic acid से हमको benzoate ion मिलेगा, positive and negative radical. So this is one type of salt. After heating at the suitable temperature, suitable high temperature, the removal of the hydrate particle or H2O or dehydration is there, so that we will get H2O and our final product is benzamide. Clear? So remember it with the suitable example. It is not compulsory to write it down. The example is given in the textbook. आप अपने से example लिख सकते हो with proper content. Here this is phthalic acid. Phthalic acid दोस्तों, this is not pathalic acid, हमारी आगे भी बात हो चुकी थी. Here pH is silent. Benzoic acid के बाद this is phthalic acid. React with the ammonia. What will be done? 2 moles of ammonia. Similar case H plus H plus. From the both ammonia, hydrogen को एक electron donate होगी, and you will get salt like this, ammonium phthalate. I repeat, not ammonium perthalate. This is ammonium phthalate. After the heating at a pure condition, क्या हो सकता है दोस्तों? At high temperature, OH and H, you will get H2O. This is phthalimide. I repeat, this is phthalimide. Reaction is not over here. आपको दोस्तों क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, थैलिमाइड सिंथेसिस. दिस इज थैलिमाइड. नाउ अभी दोस्तों इसको अगर एकदम फिर से दोस्तों एकदम एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग हीटिंग दे, देन रिमूवल ऑफ अमोनिया इज दैट. मैं इसी को यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ. यू कैन सी प्रॉपर्ली. दिस इज बेंजीन रिंग. ओके, here C dual bond O and NH2. Again C dual bond O and NH2. अगर इसको दोस्तों प्रॉपरली हीट मिली तो यहाँ से इतना पोर्शन रिमूव हो सकता है. दैट इज योर अमोनिया. देन वैलेंसी ऑफ दिस नाइट्रोजन, जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, एंड वैलेंसी ऑफ दिस कार्बन शुड बी डिक्रीज. उसको फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के बीच में दूसरा बॉन्ड बन सकता है. हियर इज द प्रोडक्ट, दैट इज थैलिमाइड. So maybe the question, thalidomide from the phthalic acid, that question may be asked in the exam. इसके साथ में दोस्तों पूरा क्वेश्चन भी हो सकता है, रिएक्शन विद द अमोनिया. ये दोनों एग्जांपल आप क्लियर कराओ, देन थैलिमाइड सिंथेसिस, ये भी आपके एग्जाम में हो सकता है. सो वीडियो पॉज करो, सिमिलर टॉपिक को रिपीट करो, देन आगे बढ़ो. क्लियर? नाउ some reactions of the carboxylic acid involving C dual bond OH. C dual bond OH से क्या रिएक्शन हो सकती है? that we already learn. ये पूरा ग्रुप के साथ अगर रिएक्ट करानी है, then you can reduce it. आप इसको रिड्यूस कर सकते हो. How? Remove the oxygen. यहाँ पे मैं number of H plus या फिर number of hydrogen यहाँ पे लेकर आता हूँ. Some hydrogen and this oxygen dual bond O is removed as a H2O. To fulfill the valency of this carbon, मैं और extra hydrogen यहाँ पे उसको provide कर रहा हूँ. It means
In the place of dual bond O, you will get two different hydrogens and OH is already there. So this is 1 degree alcohol. ये क्या बनेगा? 1 degree alcohol बनेगा. So reaction is clear. और making of the alcohol हम already पढ़ चुके हैं. With the strong reducing agent, carboxylic acid are reduced to primary alcohols by lithium aluminium hydride LiAlH4. Sodium borohydride is also a strong reducing agent but not able to reduce the carboxylic acid and the ester. वो किसको रिड्यूस कर सकता है? एल्डिहाइड एंड द कीटोन. एल्डिहाइड टू 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन टू 2 डिग्री अल्कोहल. सो यस, ये टॉपिक दोस्तों आप ऑलरेडी कर चुके हो. और बेटर विद द डाइबोरेन. अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं ले रहे हो, ये अल्कोहल चैप्टर में नहीं है, दिस इज एडिशनल, देन यू कैन टेक डाइबोरेन BS3 ट्वाइस. और कहीं जगह पे इसकी जगह पे लिखा होगा B2H6, that is diboron. Diboron does not easily reduce functional groups such as ester, nitro, halo, etc. Sodium borohydride does not reduce the carboxyl group. I repeat, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 से दोस्तों ये रिएक्शन नहीं हो सकती. क्लियर है? सो यहाँ पे डाइबोरेन ले सकते हो या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो. डाइबोरेन से बेनिफिट क्या होगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एस्टर नाइट्रोएलो को भी समहाउ इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट डाइबोरेन ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड को. सो हियर इज द कंडीशन, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड. हम दोस्तों कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज R, C ड्यूल बॉन्ड O, OH, कंडीशन इज हियर. सो क्या होगा? ये ऑक्सीजन को निकाल दो और उसकी जगह पे दो हाइड्रोजन ऐड कर दो. दिस इज योर अल्कोहल. ऑलरेडी इन द मेकिंग ऑफ द अल्कोहल ये कंडीशन के साथ हम पढ़ चुके थे. दिस इज समहाउ डिफर. ये दोस्तों एक्स्ट्रा है जो आपको याद रखना है. क्लियर? सो अनदर इजी रिएक्शन इज हियर, reduction of the carboxylic acid and decarboxylation. Another reaction which is influence the C dual bond OH. दोस्तों 11th में इन दी हाइड्रोकार्बन पोर्शन, हाइड्रोकार्बन में दोस्तों अपने एल्केन फॉर्मेशन पढ़ा था, मेकिंग ऑफ द एल्केन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड. वहां पे आपके पास एक रिएक्शन थी डीकार्बोक्सिलेशन की, वही रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी. सो हियर यू कैन सी carboxylic acid does lose carbon dioxide to form hydrocarbon when their sodium salt are heated with the soda lime. Soda lime means a mixture of the sodium hydroxide and the calcium oxide in 3:1 ratio. So 3 mole of NaOH, 1 mole of CaO. This is just a gas particle. ये गेस्ट होगा, मेहमान, ये कुछ नहीं करेगा. रिएक्शन होगी किसकी? NaOH की. और ये रिएक्शन को हम दोस्तों डीकार्बोक्सिलेशन बोलते थे, बिकॉज वहां से हम क्या करते थे? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते थे. सो दैट दिस रिएक्शन इज नोन एज अ डीकार्बोक्सिलेशन. अभी दोस्तों ठीक से देखना है, यहाँ पे ये रिएक्शन 11th में हो चुकी थी, फिर भी हम यहाँ पे कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट लिखा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है, सपोज दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड. सो इसको ठीक से NaOH के साथ रिएक्ट कराओ, सो दैट यू विल गेट sodium carboxylate. Then heat with the soda lime, NaOH plus CO. This is a gas particle. NaOH react करेगा, one Na, another Na, that is Na2. Na plus Na is Na2. Clear? Then another option क्या होगा? This carbon go two oxygen and one oxygen from here, that is Na2CO3. सोडियम बाइकार्बोनेट रिमूव होगा. सो ये Na निकल चुका है, ऑक्सीजन निकल चुका है, यहाँ से दो ऑक्सीजन निकल चुके हैं, कार्बन निकल चुका है, Na निकल चुका है. सो यहाँ पे R सीरीज में जो भी पहला कार्बन होगा उसकी वैलेंसी अभी कंप्लीट नहीं है. सो दिस हाइड्रोजन इज गोइंग टू देयर एंड फुलफिल द वैलेंसी. इट इज योर एल्केन. फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज CH3C ड्यूल बॉन्ड OH. उसको हम सोडियम कार्बोक्सिलेट में ऑलरेडी कंसीडर कन्वर्ट कर चुके हैं. सो दिस इज सोडियम कार्बोक्सिलेट. इसे लिखते हैं दोस्तों सोडियम कार्बोक्सिलेट को जरा ठीक से. सपोज CH3C ड्यूल बॉन्ड ONA और इसको मैं सोडा लाइम के साथ हीट करता हूँ, NaOH plus CaO. सो क्या होगा? सोडियम एंड सोडियम, दैट इज Na2. देन कार्बन, टू ऑक्सीजन, वन फ्रॉम दी NaOH, CO3, और ये हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे.
So this CH3 becomes CH4. ओके, ये 11th में मेकिंग ऑफ दी एल्केनाइड था। अभी दोस्तों आपको पता चला होगा, आप यहाँ पे मिनिमम मीथेन बना सकते हो। सपोज आपके पास मिथेनोइक एसिड है HCl बॉन्ड OH, और उसको आप मिथेनोइक सॉल्ट में कन्वर्ट करते हो, देन ये रिएक्शन का कुछ काम नहीं है। एक कार्बन था वो भी निकल जाएगा, तो अल्केन नहीं बनेगा। रिमेंबर, alkali metal salt of carboxylic acid also undergoes the decarboxylation on electrolysis with their aqueous solution form. Hydrocarbon having twice number of carbon atom present in the alkyl group of the acid. This is Kolbe-Schmitt reaction. Okay, again दोस्तों ये रिएक्शन भी आपने 11th में की है। सो एज अ होमवर्क आपको 11th की टेक्स्ट बुक ओपन करनी है और ये रिएक्शन कॉल्बे-स्मिथ रिएक्शन ठीक से पढ़नी है। अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है, then आपको कंफ्यूजन उसको भेजना है वाया व्हाट्सएप। इफ देयर इज नो कंफ्यूजन, then you have to reply no, there is no confusion, that is compulsory. Okay, now substitution reaction in the hydrocarbon part. Okay, suppose this is aliphatic hydrocarbon R C dual bond OH, तो इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे किसी तरह का सब्स्टिट्यूशन हो। बहुत कम रिएक्शन है क्योंकि यही ज्यादा रिएक्टिव है, सो मेजोरिटी केस में जो भी होगा यहीं पे होगा। बट फिर भी देर आर सम रिएक्शन, वन और टू रिएक्शन इन विच देर इज नो इफेक्ट विद द C dual bond OH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इफेक्ट विद द कार्बन चेन। सेकंड वन, यहाँ पे तो सर इलेक्ट्रो C dual bond H, सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलवेज ये कहाँ पे होगा, ऑन द मेटा पोजीशन। इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये मेटा पे होगा। सो क्या रिएक्शन होने वाली है ऑलरेडी हमको पता है, बट लेट अस सी। फर्स्ट इज हेलोजिनेशन। सो हेलोजिनेशन ऑफ द एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, carboxylic acid having an alpha hydrogen are halogenated at the alpha position on treatment with chlorine or bromine in presence of small amount of red phosphorus. This reaction is known as a Hall-Heart-Jelisky reaction. I repeat, maybe exam में आपको halogenation of the एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से पूछा जाए, जहाँ पे एलिफेटिक चेन में करना है, या फिर ये नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है हेल-वॉलहार्ट-जेलिस्की रिएक्शन। तो इसको हम बोलेंगे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? बिकॉज यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है। इट मींस जो हेलोजन आ रहा है वो कहाँ पे आएगा, अल्फा प्लेस पे। सो दिस इज अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन के लिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड का नियर बाय कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, उसके पास मिनिमम 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। सपोज कोई इस तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओके, एंड सी ड्यूल मोलेज, सो दिस इज मेन कार्बन, दिस इज अल्फा। बट यहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बिकॉज अल्फा कार्बन इज एक्चुअली 3 डिग्री कार्बन, सो देर इज नो हाइड्रोजन। सॉरी 4 डिग्री कार्बन, not 3 degree but actually 4 degree, 1 2 3 and 4, so there is no hydrogen, so उसकी नहीं हो सकती, मिनिमम 1 हाइड्रोजन चाहिए। if we hit with the X2 and red phosphorus, here X2 may be Cl2, may be Br2, Br2 is more suitable, so you will replace the alpha hydrogen by the X. So alpha halocarboxylic acid reaction known as a Hall-Heart-Jelisky reaction. Just complete this reaction, take the photo and send me CH3CH2 C dual bond OH, Br2 with the red phosphorus. Second step में आपको मिलेगा H2O. So what will be the product with the name? अल्फा फॉर्म में भी और IUPAC फॉर्म में भी ये प्रोडक्ट क्या हो सकती है, डिस्क्राइब इट, और उसका फोटो लेके दोस्तों व्हाट्सएप करना है। क्लियर? नाउ रिंग सब्स्टिट्यूशन, यस ये पॉसिबल है, मैंने पहले ही बता दिया था यहाँ पे दोस्तों आपको दैट ये कम रिएक्शन, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कम होगी, बट एरोमेटिक में ये पॉसिबल है दैट रिंग में से हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर पाए। सो रिंग सब्स्टिट्यूशन, aromatic carboxylic acid undergo electrophilic substitution reactions in which the carboxyl group act as a deactivating and meta directing group। मेटा प्लेस पे ही होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, हमने दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक सब्स्टिट्यूशन में एक रिएक्शन पढ़ा था, अगर वो अल्काइल एरल है, हेलो अल्केन है, फिनोल है, अमाइन है, वॉट एवर कोई भी है,
दोस्तों अगर आपको फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करना है देन रिएक्शन विद द आरएक्स, अगर एसाइलेशन करना है देन रिएक्शन विद द एनहाइड्राइड और रिएक्शन विद द एसिड हैलाइड, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये रिएक्शन विद द कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्लेस ऑफ CH3 सी डबल बॉन्ड OH इज देयर नहीं हो सकती। उसका रीजन क्या है? दिस इज लुईस एसिड, दिस इज ऑलरेडी एसिड, एसिड विथ एसिड नॉट अ सुटेबल कंडीशन। ओके, सो they do not undergo Friedel-Crafts reaction, alkylation or acylation because the carbonyl group is deactivating and the catalyst aluminum chloride, that is also Lewis acid, get bonded to the carboxyl group. Clear? So here you can see दो रिएक्शन दिए दोस्तों, नाइट्रेशन दिया हुआ है और एक रिएक्शन है आपको बाकी की जितनी भी रेदर देन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन, उसके अलावा जितनी भी है सारी परफॉर्म करनी है। यहाँ पे दो ही दे रखी है। सो दिस इज बेंजोइक एसिड, नाम लिख दे रहा है, दिस इज बेंजोइक एसिड। Concentrated nitric acid, so it is a nitration reaction in presence of sulfuric acid, that will be the catalyst. So meta place में nitro आएगा, meta nitrobenzoic acid. Another example is there, this is benzoic acid और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, so at the meta position ब्रोमो, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। इसका बाकी की रिएक्शन सल्फोनेशन, नाइट्रेशन तो हो चुका, ओके, सल्फोनेशन करना है। उसके अलावा दोस्तों इसकी बाकी की जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पॉसिबल है, आई रिपीट, FC रिएक्शन के अलावा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अलावा, वो परफॉर्म करनी है इन दी होमवर्क। ओके, आई होप दोस्तों सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। मेजर NCERT पोर्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज फिनिश ओवर हियर, सम यूजेस आर देयर एंड एट लीस्ट लास्ट में दोस्तों हम पढ़ेंगे सम एडिशनल रिएक्शंस। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।